Hello everyone, welcome to our PYQ series. As many of you have requested me for a PYQ series, today I will start a PYQ series of mathematics. Subsequently in the future lectures, I will do for physics. ठीक है? तो मेरा पहला स्टेप होगा कि थ्योरी पार्ट पढ़ाऊं, फिर उसके बाद I will try to solve the PYQs in a very subtle way, easy way, so that आप उस सब टेक्निक्स एग्जाम में यूज कर सकते हो और प्रॉब्लम को sufficient amount of time में, बहुत small amount of time में you can solve it. ठीक है? लेकिन थियरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. I will try to concise everything that is needed in one video. ठीक है? So at first we'll start with matrix. What is a matrix? It's a row column का mixture. You have rows and you have columns and you arrange them in 90-degree order. You get a matrix. Just for example, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is a particular row. This is a particular row. This is a column, this is a column, and this is a column. So this is a matrix. How many rows are there? 2 rows. How many columns are there? 3 columns. So we say this is a matrix of order 2 cross 3. Order 2 cross 3 means there are 2 rows and there are 3 columns. Very simple. We cannot have a matrix like this. Why? Because each column and each row should contain equal number of elements. इस कॉलम में 2 एलिमेंट्स है, इस कॉलम में 2 एलिमेंट्स है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट्स है, तो ये मैट्रिक्स नहीं हो सकता. मैट्रिक्स होने के लिए हर एक रो और हर एक कॉलम में you should have the equal number of elements. अब एलिमेंट्स मतलब each number is known as an element. ठीक है? So whenever I say aij, generally matrix को we represent like this, aij. M cross n. It means the ith row, jth column of an M n cross matrix. So, अगर तुम मान लीजिए 1, 2, 3, 4, इसका ऑर्डर क्या है? 2 cross 2. So if I say A12, इसका मतलब क्या है? रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है. रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है. तो कौन सा एलिमेंट पकड़ेंगे हम? 2 पे. So this is just a way of identifying elements in the matrix. So if I say A22, this is nothing but 4. ठीक है? Now we will deal with something known as a beautiful matrix, which is known as the square matrix. Square matrix. What is the beauty of a square matrix? Symmetry. Number of rows is equal to number of columns. And जो हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, that is only defined for a square matrix. जब जिंदगी में सिमेट्री हो तो लाइफ बहुत इजी हो जाता है. So a square matrix is easy to deal with compared to a rectangle matrix because a square is a symmetric figure. ठीक है? रेक्टेंगल भी है, लेकिन रेक्टेंगल एक ही साइड से सिमेट्री है, लेकिन इन स्क्वायर दे हैव 2 सिमेट्रीज along the x and along the y. So जब भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, we will deal with a more simplified version of a matrix. ठीक है? Okay. We will start with something known as trace of a matrix. देखिए, इधर if I have to teach from the scratch, then it will take a long time. But I am just teaching you the main sub topics which are necessary. ठीक है? So पहली बात तो ये, इसका मतलब है कि sum of diagonal elements. Sum of diagonal elements. Now the main question is, ये diagonal elements या entries किस बला का नाम है? इस चीज को हम डायगोनल बोलते हैं. अब ज्ञानी पुरुष पूछेंगे कि ये क्यों नहीं है? अभी मैथमेटिशियन ने डायगोनल यही डिफाइन किया है, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग. ठीक है? सो एक ही डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल, तो उसका सम क्या होगा? 1 + 5 + 9 = 15. रिमेंबर, देयर इज ओनली वन डायगोनल इन मैट्रिक्स एंड दिस इज दिस वन. ठीक है? ये डायगोनल नहीं है फॉर आवर मैट्रिक्स. ऐसे तो स्क्वायर के लिए ये भी डायगोनल है, बट फॉर मैट्रिक्स दिस इज अ डायगोनल. तो उसके सम को हम क्या बोलते हैं? ट्रेस बोलते हैं. ठीक है? अब ट्रेस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. पहला प्रॉपर्टीज ये है कि दो मैट्रिक्स का अगर सम लें, trace A plus B, that must be equal to trace A plus trace B.
नंबर 2, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर k, दिस इज एनी नंबर, एक के बाहर चला जाएगा, ट्रेस ऑफ ए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तो ये है कि ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से अगर उसका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे तो नेसेसरली वो सेम नहीं होगा। अगर दो नंबर ले 1 इंटू 2 और उसको उल्टा कर दे 2 इंटू 1 या 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, दिस इज एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज नॉर्मल अलजेब्रा, दिस इज नॉर्मल अलजेब्रा। बट द ब्यूटी ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा इज द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, उसको स्विच कर दोगे ऑर्डर, आंसर सेम रहेगा, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो लेकिन ये ट्रेस के लिए हमेशा ट्रू है, अगर ऑर्डर स्विच भी कर दो तो ट्रेस वही का वही रहेगा, देयर इज नो डिफरेंस। आई थिंक यू नो दिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ एबीसी इक्वल टू ट्रेस ऑफ बीसीए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ सीएबी। अब ये देखो ए बी सी, go in एंटी क्लॉकवाइज फैशन, A B C A B C then B C A B C A then C A B anti clockwise, so trace will remain same. These are the 5 important properties of trace that you must remember. कहीं पे भी आ सकता है मेंस में क्वेश्चन, you should remember this properties of trace. ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। ऐसे तो मैट्रिसेस बहुत के टाइप्स के होते हैं, बट वी नीड नॉट नो ऑल द नेम्स। अब नाम जान के क्या करोगे, काम ही तो चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे जो अपना इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब 1 का जो काम है अलजेब्रा में, I का सेम काम है मैट्रिक्स अलजेब्रा में। So I is nothing but a n cross n मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 1 है, बाकी सब 0 0 0। ठीक है, दिस इज नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हमें चाहिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स विद डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी भी सब 0। ए बी सी नेसेसरली सेम नहीं भी हो सकता है, ए अगर मान लो 1 भी हो सकता है, बी 2 भी हो सकता है, सी 3 भी हो सकता है। देयर इज फुल फ्रीडम टू ए, फुल फ्रीडम टू बी, फुल फ्रीडम टू सी। यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है, ए को भी 1 होना है, बी को भी 1 होना है और सी को भी 1 होना है। लेकिन यहाँ पे ए बी सी को फुल फ्रीडम है, कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। डेफिनेशन ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स, डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन पढ़ के क्या ही करेंगे, देयर इज नो पॉइंट इन लाइन डेफिनेशन। ठीक है, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसका डेफिनेशन में हमें जाना चाहिए, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नंबर 3, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उससे पहले हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज किसे बोलते हैं, व्हाट इज ट्रांसपोज। देखिए मैथ समझने के लिए बेस्ट चीज होते हैं एग्जाम्पल। अब ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे, इस इस कॉलम को हम रो बना देंगे 1 6 8, इस कॉलम को हम रो बना देंगे, इस कॉलम को हम रो बना देंगे, सिंपल। This is known as transpose of a matrix. In books you can see कि A transpose भी लिखा जाता है, A dash भी लिखा जाता है। अब जो ऑथर को जो भी पसंद आए वो अपने हिसाब से नोटेशन बना देता है। अब तुम्हें जो पसंद आता है वो लिखो, लेकिन एग्जामिनेशन में हमेशा ये बोल दिया जाएगा कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, ओके। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर होता है। मतलब Aij must be equal to Aj। जैसे कि ये लीजिए 1 2 3 2 3 3 सॉरी 5
5 7 8। इसको उल्टा कर दो, इस कॉलम को रो बना दो, 1 2 3 2 7 5 3 5 8। सेम है कि नहीं? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है? The next thing that we should know is the properties of transpose. Transpose के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? पहला प्रॉपर्टी जो ये होता है कि ट्रांसपोज को हमें अगर ट्रांसपोज कर देते हैं, we will get the same matrix A. Number 2, if I have a number, मैं उसको ट्रांसपोज कर देता हूं तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। Number 3 is the reversal law. A1 A2 डॉट 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 AN ट्रांसपोज, ये उल्टा हो जाएगा, AN ट्रांसपोज डॉट 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 A1 ट्रांसपोज। एग्जाम्पल, ABC ट्रांसपोज must be equal to C ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। This is known as reversal law in transpose. It's a very important law. This is a very 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 important law. ठीक है? Then the next thing that we should know is the skew symmetric matrix. In skew symmetric matrix, a matrix is equal to its transpose. So Aij is equal to minus of Aj. ठीक है? उल्टा हो जाएगा, इसका डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होता है। ठीक है? ठीक है? So you can write every matrix as a sum of a symmetric matrix and a sum of a anti-symmetric matrix. This is a very important property in matrix algebra. Every matrix can be written as a sum of a symmetric and an anti-symmetric matrix. ठीक है? ये important एक थ्योरम है। देखो, अब मैंने प्रॉपर्टीज बढ़ा दिया है, जब हम अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स में देन यू विल गेट टू नो कि हाउ दिस प्रॉपर्टीज आर यूज्ड। ठीक है? अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा वो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो जिसका नाम है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके पहले हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। मान लीजिए वी हैव अ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। What we do in cofactor matrix? Take this column of this column of, take this 5 into 9 6 into 8 3, लेकिन इसका हमें एक्स्ट्रा ये फैक्टर लगाना पड़ेगा। रो नंबर है 1, कॉलम नंबर है 1, तो इससे आंसर आएगा 1। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है ना। 4 into 9 6 into 7, लेकिन यहाँ पे रो नंबर है 1, कॉलम नंबर है 2, तो ये क्या आएगा माइनस, तो माइनस। So this is how you construct the cofactor matrix. ये सब बेसिक चीजें है, you should, I think you know that. ठीक है? अब मुझे क्या डिफाइन करना है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज।
कोऑपरेटिव मैट्रिक्स लीजिए, उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब एडजॉइंट हमें किस लिए चाहिए? टू डिफाइन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स मतलब अगर मान लो एक नंबर है x, you multiply with x inverse, what you will get is 1। तो इस चीज को, इसका हम क्या बोलते हैं? इनवर्स। तो मान लो एक मैट्रिक्स है, उससे हमने एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, वी गेट आइडेंटिटी मींस 1, तो ये इसका क्या बनेगा? इनवर्स। सेम गोस फॉर दिस, सो b is the inverse of a, so on the other hand a is also the inverse of b। Inverse मतलब you multiply two matrix, you will get identity matrix। So adjoint is used to define the inverse of a matrix। ठीक है, अब पहला प्रॉपर्टी, adjoint of AB is nothing but adjoint of B into adjoint of A। Number 2, adjoint of A transpose is adjoint of A into transpose। Number 3, adjoint of A power n is nothing but adjoint of A whole power n। ठीक है, Number 4, adjoint of AB is not necessarily equal to adjoint of BA। यहां पे हमने मैट्रिक्स को पहले n टाइम्स मल्टीप्लाई किया, फिर एडजॉइन किया, यहां पे एडजॉइन किया, फिर मल्टीप्लाई किया एडजॉइन को n टाइम्स, बोथ आर सेम। ठीक है, यहां पे पहले हम ट्रांसपोज किया, फिर एडजॉइंट लिया, यहां पे एडजॉइंट लिया, फिर ट्रांसपोज किया, ऑल आर सेम। ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा? दैट ऑफ ए n-1। ठीक है, और एडजॉइंट का जो डेफिनेशन है that is nothing but A inverse into that of A। Please note down these important points। फिर हम आएंगे एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट क्या होगा? उसका होगा that of A n-1 whole square। What is this A? n, this is the order of A। Many students get confused here। अगर मैं सिर्फ ये पूछूं, ये यहां पर डिटरमिनेंट लगा हुआ है क्या? साइन नहीं लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? डेट a पावर n-2 इंटू a। प्लीज लुक एट द डिफरेंस, यहां पे डिटरमिनेंट है तो एक नंबर आएगा, यहां पे मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स आएगा, ये n-2 है। स्टूडेंट इस और इस चीज के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, नो नीड टू गेट कंफ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, adjoint of k is not k power n adjoint of a, is k power n-1 into adjoint of a। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स अगर ले ले हम तो वो क्या हो जाएगा? k तो बाहर आ जाएगा, n हो जाएगा, राइट? बस प्लीज लुक एट द डिफरेंस, यहाँ पे n-1 होगा अगर पर adjoint of k निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चाहिए, नेक्स्ट adjoint of डिटर्मिनेंट, यहाँ m है, m टाइम्स है, तो ये क्या बन जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a n-1 पावर m। यू जस्ट हैव टू नो द बेसिक थिंग, हाउ टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ a। उसके बाद तुम कितना भी एडजॉइंट लगाओ, यू विल एबल टू फाइंड मोर एंड मोर एडजॉइंट। बेसिक चीज तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हर जगह पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स वेरी इजीली, वेरी इजीली। ये तुम्हारे लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई कर देगा, जनरली कि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब वो होता क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? इसके जो रूट्स हैं इसे हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं।
ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाओगे, व्हाट द हेल इज दिस? वेरी सिंपल, टेक ए मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद A माइनस लेमडा आई कर दो, मतलब 1 2 3 4 माइनस लेमडा आई मतलब लेमडा 1 0 0 1, फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो क्या बन जाएगा देखो, 1 माइनस लेमडा, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 और यहाँ पे 4 माइनस लेमडा। फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, व्हाट यू विल गेट, मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस, यू विल गेट लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। यस, जस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू वैल्यूज। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। कितने रूट्स होंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है, जिसका जितना ऑर्डर मैट्रिक्स का होगा। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 cos 2, तो इसलिए मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अगर एक 3 cos t का होता तो क्यूबिक इक्वेशन मिलता, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ भी नहीं है, बस एक क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जिसको सॉल्व करने से वी विल गेट द सो कॉल्ड आइगन वैल्यूज, ठीक है, करेक्ट। तो ये एक्चुअली है क्या, अब ले लीजिए ax इक्वल टू लेमडा एक्स, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो a माइनस लेमडा आई x इक्वल टू 0। कैसे, वेरी सिंपल, ax कुछ भी नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करो, i से, तो इसको इधर लेके आओ, नेक्स्ट क्लास जब कैमरा रूल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, अगर ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आए तो अगर ये x 0 के बराबर नहीं हुआ तो डिटर्मिनेंट को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। दैट आई विल टीच यू when I will teach Cramer's rule. अभी ये this is a degree concept, so it is very difficult to comprehend now, but it is very useful in JEE mains. तो आप ये समझ लो, इसका जो एक सॉल्यूशन है उससे हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। इसका अर्थ क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, we have a column matrix, let's say 1 2 3, ठीक है, I multiply it with something and I got 2 times of 1 2 3, तो इसको 2 टाइम्स बढ़ा दिया, तो this is known as a आइगन वैल्यू। That is the thing that you should know about characteristic equation. डिटेल में जाएंगे तो it will waste our time because it's not a this is not a schooling 11th concept, but इसका एप्लीकेशन हमें जरूरत है, ठीक है। तो you should remember is आइगन वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो इसका रूट सी है आइगन वैल्यूज। You should remember this one and you should remember this one, ठीक है। सो पहले बात तो ये 2 cos 2 का शॉर्टकट मैं बता देता हूं, 2 cos 2 का शॉर्टकट कैसे निकालना है। अब ये देखो 1 2 3 4, so lambda square is minus trace of a into lambda plus determinant of a equal to 0। lambda square माइनस trace का मतलब क्या था, साउंड आइगन वैल्यूज कितना, 5 lambda, डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा, -2 equal to 0। देखो कितना इजी हो गया, राइट। सो 2 cos 2 का जो आइगन वैल्यू इक्वेशन है बहुत ही सिंपल है, क्लियर। प्रॉपर्टीज, ट्रेस ऑफ ए इज सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज n आएंगे तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस n है तो उसका जो इक्वेशन बनेगा पॉलिनोमियल इक्वेशन वो भी n डिग्री का होगा। तो n डिग्री में रूट्स कितने आते हैं, n रूट्स, उस रूट्स का नाम क्या है, आइगन वैल्यूज, तो उसका जो सम है वही ट्रेस है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। नंबर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, ठीक है। नंबर 3, अगर a का आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है तो a स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर डॉट 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 लैम्डा n स्क्वायर। a क्यूब का आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा 1 क्यूब लैम्डा 2 क्यूब डॉट 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 डॉट। और a पावर n का आइगन वैल्यू क्या होगा, सॉरी -1 का, लैम्डा 1 पावर -1 लैम्डा 2 पावर -1। पावर सेम है, कितना इजी है देखिए। If I now ask you find the trace of a square,
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर? सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर. ट्रेस का मतलब क्या है? सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स. अब ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू कितना है? लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा n स्क्वायर. कितना इजी हो गया, राइट? लिख ले. नेक्स्ट, two matrices are similar if their eigenvalues are same. I have seen many students getting confused with the fact कि अगर दो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू सेम है तो मैट्रिक्स भी सेम होगा. नहीं, you will get many examples जिसमें दो मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू सेम है लेकिन मैट्रिसेस सेम नहीं है. तो ये जहन में घुसा लीजिए कि अगर आइगन वैल्यू सेम होगा तो मैट्रिसेस सेम नहीं भी हो सकता है. अब एग्जांपल ढूंढना काम आपका है, यू जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, दो मैट्रिक्स अगर उसका आइगन वैल्यू सेम है तो उसे हम सिमिलर मैट्रिसेस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिमिलर मैट्रिक्स. अब मान लो बी ए बी इनवर्स और ए का आइगन वैल्यू सेम है. सेम, ये मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा when I will do solve questions and means. It's a very important concept. ठीक है, क्लियर? ओके. यहाँ बी का कोई मीनिंग ही नहीं, मीनिंगलेस. बी मीनिंगलेस है यहाँ पे. ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में जिसका नाम है केली-हैमिल्टन थ्योरम. केली-हैमिल्टन थ्योरम. इसका मतलब है every square matrix satisfies its own eigenvalue equation. Just for example, if you take this matrix 1 2 3 4, तो इसका eigenvalue equation क्या होगा? lambda square minus trace कितना? 5 lambda determinant 2 minus 2. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. मतलब लैम्डा में अगर ए डाल दोगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा. लैम्डा में ए डाल दो, यहाँ पे 2 में, यहाँ पे 1 है ना, 1 के जगह आई डाल दो तो ये 2 हो जाएगा. नाउ यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स. वेरी सिंपल टास्क. यू चेक वेदर दिस इज वैलिड और नॉट. यू जस्ट चेक. आई हैव लेफ्ट इट टू यू टू इसको स्क्वायर करो, इसको सिंपलीफाई करो, देखो कि जीरो मैट्रिक्स आता है नहीं. जीरो मतलब 0 0 0 जो आना चाहिए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम क्योंकि ये फाइंड करना इजी है कि ये फाइंड करना इजी है. ऑब्वियसली ये बिकॉज ये नंबर है, एक ही तो चीज है वहां पे. ये तो मैट्रिक्स है, इसमें बहुत सारी चीज है. सो यू कैन फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड यू कैन एस्टैब्लिश द मैट्रिक्स इक्वेशन यूजिंग केली-हैमिल्टन थ्योरम. इसका एडवांटेज क्या है? क्योंकि नंबर को स्क्वायर करना इजी है, क्योंकि मैट्रिक्स को स्क्वायर करना कंपैरेटिवली क्या है? टफ है. ठीक है, आइगन वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कम पढ़ाया जाता है. ठीक है, और एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो आइगन वैल्यू है ए का और जो आइगन वैल्यूज है ए ट्रांसपोज का, वो दोनों सेम है. मान लो अगर ए एक 3x3 मैट्रिक्स है, उसका आइगन वैल्यूज है 1 2 3, सो ए ट्रांसपोज का भी क्या ही रहेगा? 1 2 3. देखिए ये सब तुम्हें एक ही बुक में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा. जस्ट आई हैव समराइज ऑल दिस थिंग्स इन ए पर्टिकुलर वीडियो ताकि तुम एक वीडियो देख के बहुत कुछ समझ सको. ये चीज जो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, आइगन वैल्यू सेम है, यू विल नेवर गेट इन एनी बुक. स्कैटर्ड है, कहीं पे ये है, कहीं पे वो है. मैंने ये ट्राई किया है कि सब कुछ लाके एक ही जगह पे रख दूं ताकि तुम you understand the properties of eigenvalue equation, you understand the properties of adjoint, you understand the properties of matrix, then you go on. I hope I have been able to summarize different properties of matrix, different types of matrix, properties of adjoint of a matrix, and specially the eigenvalue equation. ठीक है, in next class I will be dealing with determinants and Cramer's rule. उसके बाद I will be solving QQs on matrices and determinants.